गुरुवार की दोपहर एक माँ और उसकी बेटी किसी अजनबी से टकराने के बाद जितनी तेजी से हो सके अपने अपार्टमेंट की ओर भागती हैं। वे उस अजनबी को कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती हैं, लेकिन माँ के मुताबिक यह इस घटना की सबसे डरावनी बात नहीं है। So I'm sitting here looking at this ring camera footage, and I don't understand how I didn't see this because this is ridiculous. उसी वक्त जब ये घटना हो रही थी, कैमरे में ये कैद हुआ। ध्यान से देखो। I just called the police. Get out front of my door. This is the last time I'm gonna tell you. Get out front of my door right now. The police on the way. Go. रिकॉर्डिंग के दौरान जैस्मिन को अंदाजा भी नहीं था कि ये हो रहा है। अपार्टमेंट 23 का दरवाजा अपने आप खुल गया था और कुछ सेकंड्स तक खुला रहा, फिर बंद हो गया। हालांकि ये अपने आप में अजीब है, लेकिन जैस्मिन को जो चीज ज्यादा परेशान कर रही है वो ये नहीं है। इस घटना के कुछ दिन बाद जैस्मिन एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और उसमें कुछ ऐसा दिखाती है जो सबको और ज्यादा डरा देता है। In the 3 years that I've lived here, I have never seen this door come open. Ever. Like, but in the video, you saw the door just came open. Who opened the door? Like, look at that. Like, pitch black. Like, make it make sense. Like, how? How? I don't know. That don't make sense. अगर दरवाजा 3 साल से कभी नहीं खुला, तो वो अचानक कैसे खुल गया? जैस्मिन को खुद समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो इस मामले में और गहराई से जाती है, चीजें और अजीब होती जाती हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी है, क्योंकि जब जैस्मिन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करती है और कोई उस दरवाजे को खोलता है, तब कुछ ऐसा होता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। Okay, y'all, so property management sent somebody up to come take a look, so I'm gonna let him do what he do, and I'm gonna stay back here. Light works. You say the light works? Y'all, he said the light works. Oh, Lord. What the what is that? It's all y'all. What the hell is going on? Y'all see all these little kids? What the hell put kids' shoes up in there? What the? So how did? So hold on, because no, this other day the door came open when I was in here. So if the door came open, like no, I'm sorry, I'm not. Okay, y'all. So remember that thing? I thought it was a snake. I really thought it was some plastic, but y'all, I'm not finna get close to this. This is real snake skin. Oh my God. Look at this. You can see like, ooh. Oh my God. Look at that. कमरे के अंदर बच्चों के जूतों का एक बड़ा ढेर था, और वो भी कई अलग अलग साइज में। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कमरे में और भी अजीब चीजें मिलती हैं, जैसे सांप की असली कैंचुल, जिसे जैस्मिन पहले प्लास्टिक समझती है। लेकिन जो चीज इस सब को और ज्यादा खतरनाक बना देती है, वो है एक खास जोड़ी जूते। जैस्मिन को एहसास होता है कि उस ढेर में उसकी बेटी के जूते भी हैं, और वो समझ नहीं पा रही कि वो वहां कैसे पहुंचे। And I noticed something in that pile of shoes. Those frozen Elsa boots, whatever you want to call it. Those boots are my daughter's. Like, I'm gonna show y'all a picture that me and my daughter took, like, I want to say like 2 months ago. Yo, this is crazy because I really thought she just lost them at school. Those shoes belong to my daughter.
इस वीडियो को देखने के बाद एक सवाल उठता है, अगर दरवाजा सालों से बंद था तो उसके अंदर ये सारे जूते कैसे पहुंचे और जैस्मीन की बेटी के जूते वहां कैसे आए? Somebody in this building must be going around here just collecting shoes. Just, and I'm not gonna say collecting, stealing little kids' shoes around here. I've talked to at least 2 or 3 different people in this building who have said that their children been missing shoes. So I'm thinking that somebody has access to that room and they're going around stealing shoes and then taking them and putting them in there. They're just putting shoes in the room. Like it just none of this makes sense to me right now. None of it. जैस्मीन का शक है कि कोई इस बिल्डिंग में बच्चों के जूते चुरा रहा है और उन्हें इस कमरे में जमा कर रहा है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने तब जाकर कमरे से सारे जूते हटा दिए और दरवाजे का ताला बदलने का फैसला लिया, लेकिन जैस्मीन ने तब तक रुकने का नहीं सोचा। उसने एक ट्रैप तैयार किया। Okay, y'all, I'm finna get to the bottom of this. See these little shoes right here? I put them here as bait, right? On some real cheap shoes, just, little kid shoes or whatever. But what I did was, I got me a plant, right? Little cheap plant too, but look what's inside the plant. Hopefully y'all can see it. Hopefully nobody else see it, but... उसने सस्ते बच्चों के जूते हॉलवे में रख दिए और एक पौधे के अंदर कैमरा छिपा दिया। जैस्मीन का मानना था कि जो भी इन जूतों को उठाएगा और कमरे में जाएगा वही असली चोर होगा, शायद वही जिसने उसकी रिंग कैमरा भी चुराई थी। पहली 2 रात कुछ नहीं होता, लेकिन तीसरी रात कैमरे में कुछ ऐसा कैद होता है जिसने जैस्मीन को हिला दिया। जूता अपने आप हिलता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे हवा में उछाला हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। ये देख जैस्मीन की पड़ोसी भी डर जाती है। उसने बताया कि उस रात उसे अपने दरवाजे के पास किसी बच्चे के रोने की आवाज आई थी, लेकिन जैसे ही उसने बाहर झांका उसे एहसास हुआ कि आवाज अपार्टमेंट 23 के अंदर से आ रही है, वही कमरा जिसमें बच्चों के जूते मिले थे। वह डर के मारे वापस अपने कमरे में चली जाती है और तभी कुछ और अजीब होता है। अब ये तय कर पाना मुश्किल है कि उसने वाकई किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी या नहीं, क्योंकि कैमरे में ऐसी कोई आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई। लेकिन जूते का अपने आप हिलना ये किसी भी तरह से समझ में नहीं आता। यही वो बात है जिसने जैस्मीन को सबसे ज्यादा डरा दिया। तभी से जैस्मीन ने वो जूते फेंक दिए हैं और तब से अब तक कोई नई वीडियो सामने नहीं आई है। जब तक इस मामले में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती, तब तक यह घटना एक रहस्य बनी रहेगी।